Okay, good morning. So as we have started our fourth unit and it's all about the functions in Python. So without wasting any time, directly uh, directly we are going now to the point where we मतलब पूरा एक section तो हो ही गया था which is by default function built-in function. Now the next topic which is uh, user defined function, and in this today's lecture we are going to see uh, what are the user defined function, what is the implementation, how we can implement, and rest of the application, rest of the interactions regarding to this user defined functions in Python. Okay, so let's start with that concept. Okay, so Python user defined function. So I guess in the last lecture I told you about the short idea of what is Python user defined functions. So the functions that we define ourselves to do certain specific tasks are referred as user defined function. क्या है difference? There is only one difference, that the function we define ourselves. Okay, this is the bottom line. हम लोग खुद से डिक्लेयर कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, एंड दोस फंक्शंस आर यूजर डिफाइंड फंक्शंस. जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, इफ यू वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ द पर्टिकुलर स्ट्रिंग देन वी कैन यूज द सिंपल len फंक्शन. ओके, विच इज द बाय डिफॉल्ट फंक्शन. लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मैं LENGTH ऐसा पूरा लेंथ का स्पेलिंग लिख के एक्सेस नहीं कर सकता. ठीक है, because the by default syntax of this function is len, so I have to write in the same manner as the system defined. But in this case we can generate our own features our own functions which we can implement in our Python program. Okay, so the way in which we define and call functions in Python are already discussed. So हम लोग ने already बात की है उसके बारे में. Functions that are readily come with Python are called built-in functions. Blah blah blah. हम लोग ने देखा है सब. All other functions that we write on our own fall under the user defined function. Suppose I want to create one salary function for the employees, या फिर मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुझे सैलरी जनरेट करनी है, एंड दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग वन सैलरी फंक्शन. सो आई कैन राइट द सैलरी या फिर पेमेंट, कौन सा भी मैं जो मेरे चॉइस का नेम चाहिए वो मैं रख के फंक्शन बना सकता हूँ. दैट इज ऑल अबाउट यूजर डिफाइंड फंक्शंस. ओके, सो यहाँ पे देखो example of user defined function. So here they write two different comments program to illustrate and the use of user defined functions. Okay, so here is our user defined function named as def. ये क्या है? हम लोग ने देखा है function to write the appropriate function in Python we use this. इसके बारे में हम लोग ने पढ़ा भी है. Come to point, add numbers is my function, is my user defined functions. Now I can write this as a add numbers, add num, ad numbers या फिर सिर्फ numbers, whatever it is, या फिर sum भी लिख सकता हूँ मैं. Whichever name you have to write, your favorite name, your non favorite name, कौन सा भी नाम आप लोग यहाँ पे रख सकते हो. That is the point of user defined function. ठीक है, and I'm passing to variables. अभी variables में arguments. अभी ये जो rest of the scenario is same as we have discussed in Java, as we have discussed in C++, in C language. Okay, there is only difference कि थोड़े syntax अलग रहे Python में और C में. That's it. So add numbers is my user defined function and x and y is my argument, and inside the function body I am creating one new sum variable. In that sum variable I am storing the result of x plus y, या फिर मैं हम लोग बोल सकते हैं मैं एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ. एंड आफ्टर दैट सिंपली रिटर्न द वैल्यू ऑफ कैलकुलेटिंग सम. ठीक है, सो माई num1 इज इक्वल टू 5, num2 इज इक्वल टू 6. ओके, जो num1 में असाइन कर रहा हूँ x के लिए यूजिंग दिस कॉलिंग फंक्शन. यहाँ पे देखो यूजर डिफाइंड फंक्शन ये मैंने डिक्लेयर किया, यहाँ पे मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ. ओके, टू कॉल दिस फंक्शन प्रिंट में मैंने लिखा, या फिर मैं एक्सटर्नली भी कॉल कर सकता हूँ. ठीक है, बट दिस इज द गुड प्रैक्टिस टू राइट द स्टेटमेंट द सम इज इक्वल टू और उसके आगे फिर रिजल्ट आने वाला है. सो व्हाट इज माय रिजल्ट? सो आई एम स्कैनिंग दिस वैल्यू यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजिंग द कॉलिंग फंक्शन. एड नंबर्स को मैंने कॉल किया है, एक्स और वाई दो आर्ग्यूमेंट है वो मैंने सेट किए num1 एंड num2 एट द वैल्यू ऑफ num1 num2 इज 5 and 6. सो 5 plus 6 11. काय झालं?
Okay, I guess there is some here we defined a function my addition. My addition कहाँ पे डिक्लेयर किया? ओके कुछ तो गड़बड़ है इसमें आउटपुट में, क्योंकि एंटर अ नंबर 2.4 ऐसे आ रहा है, ये किसी और का इन लोग ने थोड़ा साइड में गड़बड़ है, बट द रिजल्ट इज द सम इज इक्वल टू 11 ऐसे रिजल्ट जनरेट होने वाला है, दैट्स ठीक है. ओके नाउ द नेक्स्ट concept in our Python user defined function is, यहाँ पे देखो पुटे गेला स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स. ठीक है, स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स कहाँ पे, स्कोप मतलब मैं कहाँ पे यूज कर सकता हूँ. ठीक है, सो द फर्स्ट स्कोप of the variable is all about the global variable and local variable. मतलब global variable local variable scenario हम लोग को मालूम है. I guess in each and every language we have go through this local variable and global variable scenario. Inside the function body the scope of the local is the scope of the variable is local, and outside the function body the scope of the variable is global. ये हम लोग को पता है. global मतलब क्या, वर्ल्ड वाइड जो फंक्शन के बाहर भी है, एंड लोकल मतलब एरिया के अंदर जो फंक्शन के inside the function. ठीक है, that's it in a simple language. ठीक है, so in Python a variable declared outside at the function or in a global scope known as global variable, जो अभी मैंने बोला simple language में. okay, this means that a global variable can be accessed inside or outside of the function. मतलब जो क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो महाराष्ट्र को बिलोंग करता है वो ढानू में भी आ सकता है. ठीक है, बट मतलब महाराष्ट्र के लिए जो ड्राइविंग लेसन है वो मैं ढानू के लिए यूज कर सकता हूँ, बट सिर्फ ढानू के लिए जो ड्राइविंग लेसन है थोड़ा एग्जांपल प्रैक्टिकल नहीं है, रैशनल नहीं है, बट आई होप यू गेट द पॉइंट कि जो महाराष्ट्र में वैलिड है वो ऑब्वियसली ढानू में भी वैलिड रहने वाला है, बट सिर्फ जो ढानू में वैलिड है वो महाराष्ट्र में वैलिड हो ही सकता है, ऐसा हम लोग बोल नहीं सकते. ठीक है, सो तो ग्लोबल वेरिएबल इज ऑल अबाउट जो महाराष्ट्र वाला सीन है वो. ठीक है, सो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया उन लोग ने, x इज इक्वल्स टू ग्लोबल. अभी ग्लोबल ये यूजर डिफाइंड वेरिएबल नेम है. हाँ, ये ग्लोबल सेट क्या मतलब ये ग्लोबल हो गया ऐसा नहीं है. हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल वेरिएबल जो x या फिर y रहेगा वो ग्लोबल है कि नहीं. सो इफ द वेरिएबल इज आउटसाइड द फंक्शन बॉडी देन इट कैन बी अज्यूम दैट मस्ट बी ग्लोबल वेरिएबल. ठीक है, सो ये आउटसाइड द फंक्शन बॉडी आहे, सो ऑब्वियसली हा काय असणार आहे, हा आपला ग्लोबल वेरिएबल असणार आहे. ठीक है, so see here after that I'm creating one function, foo नाम का फंक्शन किया और प्रिंट क्या किया, इनसाइड. अभी यहाँ पे मैंने अगर y क्रिएट किया सो y इज माय लोकल वेरिएबल जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले. ठीक है, और foo को मैंने प्रिंट किया x आउटसाइड. देखो x इनसाइड क्या है, x तो ग्लोबल वेरिएबल मैं इनसाइड भी यूज कर सकता हूँ, मतलब एज ए लोकल, मतलब लोकल बॉडी में भी मैं यूज कर सकता हूँ, एज वेल एज अब ये फंक्शन के बाहर और एक मैंने प्रिंट स्टेटमेंट इम्प्लीमेंट किया है जो है आउटसाइड. ठीक है, और आउटसाइड में मैंने कॉल किया x को, और आउटसाइड में वो तो ऑब्वियसली कॉल होने ही वाला. ठीक है, व्हाट इफ यू वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ x इनसाइड अ फंक्शन. ठीक है, अभी उन लोग ने बोला है सिनेरियो 2 इज यू वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ x इनटू दिस लोकल फंक्शन बॉडी स्कोप. ठीक है, सो यहाँ पे क्या आने वाला है, एरर आएगा. देखो लोकल वेरिएबल x रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट. ठीक है, सो the output shows an error because Python treats x as a local variable and x is also not defined inside foo. So ये उसे local variable के तौर पर treat कर रहा है because that x is written inside the function body. Okay, और वो x function के अंदर भी डिक्लेयर नहीं किया है. ठीक है, सो वो कंफ्यूज होगा कंपाइलर एंड इट विल अपेरेंटली थ्रो वन एरर जिसका नाम है अनबाउंड लोकल एरर एक्सेट्रा जो कुछ भी है. ठीक है, देन द नेक्स्ट इज लोकल वेरिएबल. सो लोकल वेरिएबल इज द कंप्लीट वाइस वर्सा प्रोसेस ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, दैट्स इट. और ये भी हम लोग को पता है कि जैसे कि मैंने अभी बोला, वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन बॉडी इन द लोकल स्कोप नोन एज लोकल वेरिएबल. ओके, सो सी हियर नाउ आई एम क्रिएटिंग वन foo फंक्शन एंड यहाँ पे मैंने y नाम का वेरिएबल बनाया है जो लोकल है. ठीक है, और foo मैंने यहाँ पे एंड कर दिया एंड outside the function body I can call the print y method. ठीक है, यहाँ पे मैंने फंक्शन एंड किया है और फंक्शन के बाहर में y को कॉल कर रहा हूँ. सो इट विल ऑब्वियसली थ्रो द एरर because the scope of this variable is inside the body
ओनली, मतलब यहाँ पे वो y का जो लोकल एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा, उसकी डेथ हो रही है, ठीक है। इफ आई कैन राइट दिस प्रिंट स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी, मैं इसे अल्ट प्रेस करके ऊपर ले जाऊँ यूजिंग टर्मिनल शॉर्टकट्स, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू लोकल ऐसे प्रिंट होने वाला। आई होप यू गेट द आइडिया, आई होप यू गेट द concept what I am telling about, ठीक है। then the next is create a local variable. so normally we declare variable inside the, अभी ये एक local variable नहीं है, मतलब local variable है but calling के टाइम मैंने बाहर किया है, so I cannot get the appropriate result. so to get that, to do that, we have to declare a variable inside the function body as a local variable. so the compiler treat this function या फिर the print statement as a local variable. so see here, जैसे मैंने ऊपर बोला कि प्रिंट y को मैंने ऊपर कर दिया और जो y की वैल्यू है लोकल वो प्रिंट हो रही है, ठीक है। then the next is global and local variables. so using global and local variables in the same code, अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों भी एक ही कोड में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। so see here x is equal to global, अभी इसको मैंने नाम ग्लोबल दिया है इसीलिए वो ग्लोबल सेट हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये हम लोग ने ग्लोबल नाम दिया है क्योंकि वो समझ में आए, but the variable is outside the function body, that's why we denote या फिर we call this variable as a global variable. अभी ये सिनेरियो ना हम लोग ने C++ सब में देखा है, सिर्फ पाइथन के स्ट्रक्चर के साथ कैसे डील करना है इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में, ठीक है। सो सी हियर सेम फंक्शन मैंने बनाया foo, और अभी यहाँ पे क्या किया मैंने, ग्लोबल एक्स, ग्लोबल एक्स ये क्या है। Okay, so the thing is, as I said earlier, we can access this global variable as a local variable. इस ये हम जो global variable है ना वो हम लोग कहाँ पे भी use कर सकते हैं, inside the body as well as outside the body. So see here, we can just simply access this global using this instance of the x, ठीक है। हम लोग सिर्फ उसे एक्टिवेट कर रहे हैं, एक क्या बोलते हैं, पिंग कर रहे हैं, सिर्फ जो हम लोग ने आउटसाइड द बॉडी डिक्लेयर किया है ना उसे हम लोग सिर्फ यहाँ पे पिंग कर रहे हैं कि बाबा तू अंदर आ जा, ठीक है। नाउ आई एम क्रिएटिंग अनदर वेरिएबल y एज अ लोकल वेरिएबल, ये इनसाइड द फंक्शन बॉडी है इसलिए लोकल वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद ये जो x मैंने यहाँ पे कॉल किया है जिसकी वैल्यू एक्चुअली ग्लोबल है, जो यहाँ पे मैंने एक्टिवेट की है, आई एम परफॉर्मिंग वन ऑपरेशन एज x इंटू टू, सो ग्लोबल इंटू ग्लोबल वो परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रिंट x किया, x की वैल्यू क्या है, x इंटू टू, सो ग्लोबल इंटू ग्लोबल, यहाँ पे देखो ग्लोबल ग्लोबल आ रहा है, दो बार प्रिंट हो रहा है, एंड आफ्टर दैट प्रिंट y, so the y holds only local value, so it will return the local value only. Clear? Now you get the idea of local and global scenario. Then the next is global variable and local variable with same name. अभी हम लोग देखेंगे कि ये यहाँ पे देखो ये x नाम दिया था और y नाम दिया था, so the compiler won't get confused between the local and global variable. But what if the global variable has same name, x is equal to 5 and local variable has same name, x is equal to 10, ऐसे टाइम पे क्या होगा, ठीक है। so यहाँ पे देखो local x, so local की वैल्यू कितनी है 10, so obviously वो कंपाइलर बहुत ही होशियार है, बहुत ही इंटेलिजेंट है कंपेयर टू अस, ठीक है। so उसने वो x is equal to 10 प्रिंट किया, बिकॉज द लोकल x इज, क्योंकि ये इनसाइड द फंक्शन में कॉल कर रहा है ना, तो ऑब्वियसली ये इसकी वैल्यू देने वाला है, और जो आउटसाइड द फंक्शन है इट विल थ्रो द 5 because this will scan the global variable. Clear? Okay. Now non-local variables are used in nested functions whose local scope is not defined, ठीक है। so non-local ये कभी हम लोग यूज करने वाले हैं at the time of nested functions. Nested functions means function inside the function. So this means that the variable can be neither in the local or not global. We use the non-local to implement this. उसके बाद है यहाँ पे उसका एग्जांपल दिया है नॉन लोकल का, सी हियर आई कैन क्रिएट वन आउटर फंक्शन जो यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है, एंड इनसाइड दिस आई एम क्रिएटिंग वन इनर फंक्शन, ठीक है। अभी आउटर फंक्शन मतलब ये लोकल वेरिएबल हो गया, और इनर के अंदर और एक मैंने सेम नाम का वेरिएबल बनाया है विच इज नॉट द लोकल बिकॉज दिस इज माई ओरिजिनल लोकल वेरिएबल, ठीक है। सो आई कैन डिनोट दिस एक्स एज अ नॉन लोकल वेरिएबल जो हम लोग ने ऊपर देखा, और मैं दोनों की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ और दोनों भी नॉन लोकल प्रिंट कर रहे हैं, बट द नॉन लोकल हैज inside the inner function body only, but at the time of outer it will print the same because of this non-local features. So I hope you get the idea of what is non-local is and the